गुड इवनिंग, जय हिंद और वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका दोबारा स्वागत है। प्रणाम, सत श्री अकाल और वणकम। आज हम बात करेंगे मणिपुर इन इम्बैलेंस। ये जो सब्जेक्ट है मैं टच नहीं करना चाहता था क्योंकि ये काफी सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मणिपुर मेरे हिसाब से बड़ा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव states in India. And I thought I shouldn't speak too much about it. But this whole story of Manipur, which started in the first week of May, it has continued. ये काफी खींच चुका है और आज हमारा जो गृह मंत्री है उन्होंने एक ऑल पार्टी मीट भी नियुक्त किया है और इस ऑल पार्टी मीट में क्या नतीजा निकलेगा वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन दिस ऑल पार्टी मीट. But then I thought, let me put things in perspective, क्योंकि इसके बारे में बहुत अफवाहें फैल रही हैं. People who don't know anything are just talking. You know, I see tweets coming out. They are communal in nature. They are biased, and they are full of hate and ignorance. For example, एक आईपीएस ऑफिसर ने असम राइफल्स के बारे में बोला. He doesn't even know what Assam Rifles is, and he has spoken that it is a biased force. जनरल शोकिन चौहान ने उसको क्लैरिफाई किया एक वीडियो में जो डिफ टॉक्स में किया है. मैं दोबारा आई वांट टू रीइंफोर्स इट. आई हैव कमांडेड असम राइफल्स. Assam Rifles is an all India force. Firstly, there is no bias. It is officered by officers of the Indian Army. They have multiple tasks. They have internal security duties, basically in the northeast regions, as also border tasks, border related tasks. The Assam Rifles, in its earliest avatar, had a different, task and all that. But today, there's no doubt, it's a central paramilitary force officered by the Indian Army. And they have no bias. How can a person from Kerala have a bias against a Manipuri or a Kuki? One. And number two, the Assam Rifles battalions are not static. They move like army of units. आज इधर, 2 साल के बाद उधर, 3 साल के बाद और कहीं. There is no affiliation of any Assam Rifle battalion with the local area. They get posted to a local area, perform their tasks, and move on. They don't drop roots there. It is one of the finest forces in India which can tackle issues in the Northeast. And yet, you have an ignorant IPS officer, putting out a tweet against it. It saddened me. And that is when I thought, let me clarify issues regarding Manipur. Okay. First thing, we have to understand कि मणिपुर कहाँ है और ये नॉर्थ ईस्ट का क्या है माजरा. जब तक you don't understand the larger issues of Manipur and the northeast, you'll never understand what's going on in Manipur. So let me start from that. Yeah, this map which you see of the northeast states of India, if you see, if you leave Sikkim out of the thing at this point of time, the central state in this is Assam. Earlier, this entire area of northeast was Assam. Today, that one in pink is Assam. It is surrounded by Arunachal Pradesh on the north. Of course, Arunachal Pradesh was never part of Assam. It was part of Nepal, Nagaland, Manipur, and Mizoram from north to south. Then you have Tripura and Meghalaya. Now, Assam, Meghalaya, and Tripura have borders with Bangladesh.
Assam has borders with Bangladesh, Bhutan, and these two countries. Mizoram has borders with Bangladesh and Myanmar. Manipur has borders with Myanmar alone. Similarly, Nagaland has borders with Myanmar. Arunachal Pradesh has borders with Bhutan, Tibet in the north, and Myanmar. If you see the states of Northeast have borders with almost all countries. It has maximum international borders there, right? So, and you have to also understand there are myriad number of tribes out there, which I'll touch upon. And I'll touch upon the history of all this story, right? Okay. First and foremost, the geography. If you see, अगर आप ये जो मैप है, अगर आप नजदीक से देखोगे, तो क्या आपको नजर आता है? ऊपर जो है ब्राउन में हिमालयस है. Himalayas, as they move from west to the east, the height keeps reducing. Somewhere in the end, where Dibrugarh is written, where the green portion is there, the Himalayas swing to the south and they start losing height and then they keep going down. Right? Now, the complete northeast, if you see Dibrugarh, Imphal, Aizawl, all these are in the hill areas. Right? From this hill areas, one offshoot takes place, goes towards Shillong. Right? These are the Barel Hills, the Garo Hills, and the Jaintia Hills. That is the state of Meghalaya generally. But that's not the whole story. Right? I already see a lot of people have started giving opinions. Just wait. Listen to the whole story and then give your opinions. Okay. Now to the north, between the Himalayas and the Garo Hills and the Jaintia Hills and the Barel Hills, you find the Brahmaputra Valley. That's the major valley in this area. To the south of Shillong, if you see, there is another valley called the Barak Valley. Okay, Barak River and the Barak Valley. Okay, so and the Barak River gets feed from all the hills, which is the Naga Patkai Hills, which is coming down from Dibrugarh towards Imphal in this map. They're all small rivers, and these are hill ranges flowing north to south. Okay. Now, if you see this, in this map, you'll see very clearly the Brahmaputra Valley and the नीचे जो सिलचर के पास जो जाता है, that's the Barak Valley. The entire northeast borders Myanmar, almost. The states of Arunachal Pradesh, uh, Nagaland, Manipur, and Mizoram. 4 states border Myanmar. Now, this border is an open border. The Myanmar border is an open border, but a live border, which means that people can go this side and that side. Why it is so, I'll just come to it. Okay. On the other side is Bangladesh and all that. So I have said, you have to understand there are 2 river valleys in this. Okay. What is this northeast region all about? Your northeast region is strategically located for international trade. It shares its boundaries with 5 countries. There are heavy rains in this area, lot of precipitation, extremely rich flora and fauna, endowed with vast natural resources, petroleum products, hydel power, but it is sparsely populated. It is dominated by tribes in the hills and others in the uh, river valley. So the 2 major river valleys are the Brahmaputra Valley and the Barak Valley. There is also Imphal Valley. I'll touch upon it a little later. So these 3 are the valleys. In these are normal people. When I say normal people, they're non-tribal. The hills to the north, south, and east are all tribals. Okay. Now,
The people in this area, whether they're tribal or non-tribal, right? They have it ethnic links to Southeast Asia, Myanmar, China, and Thailand. In the olden days, these hill tribes traded with the plains people of the Ahom kingdom. The Ahom kingdom inhabited the Brahmaputra Valley. Okay, but they also fought with them. So there were trades which were going on east-west, and wars also were going on. Now the Ahoms and the British rulers of the Brahmaputra Valley never could hold the surrounding hills. They only ruled the valleys. The surrounding hills were all tribes who were independent. Okay. Now, rulers of the pre-colonial Kachar never held the hills that surrounded the Barak Valley. Now, what is this Kachar? That is the interesting part. Okay. Now, I'll explain where is Kachar. If you see this, the area, you see this map, आप नजदीक मैं दिखाऊंगा जो कचार है जो इम्फाल और सिलचर के लाइन के ऊपर और दीमापुर और काजीरंगा नेशनल पार्क वो इलाका है कचार और these are called the Kachar Hills, North Kachar, right? Hills. North Kachar Hills is the thing. Now, the North Kachar Hills is a very critical part of this entire Northeast. It is a central piece of Northeast. It is a confluence of all tribes of Northeast. The Britishers could never hold this area, and as a result, they never held any other area of in the tribal areas. They let the tribes be as it is. The British rule was in the Barak Valley and the Brahmaputra Valley. In the pre-partition days, the Brahmaputra Valley was approachable from Dhaka, Agartala, Silchar, and beyond. The Barak Valley. The Brahmaputra Valley was from the north, Guwahati. The area in between, where the Jaintia, Garo, Kasi, Barel hills were never held, and the Kachar hills were never held. And accordingly, the Naga hills, Patkai hills, the Lushai valleys, they were all not held. The third valley, which is the Manipur valley, was that of the Manipur kingdom. Okay, so these are the old stories of this area, and this is the history of this area. Okay, right. When Burma was made, after all, Burma at that point of time was part of the British Empire. In 1937, Burma was made, and it was partitioned into Burma and British India. Now, many tribes along the which are along the Myanmar border got separated because it was an unnatural division. It was not a natural division, right? In that unnatural division, tribes like mainly not even Garo and Kasi, Kuki, Zomi, Mizo, and Naga, which are the tribes which are in Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram got separated. When East Pakistan, when that is came into being, the Garo and the Kasis got split up. Okay, so you find that, of course, the Mizos were affected by the Burma division and the Bangladesh division. So you find that people, families, everyone are residing across the borders, and these borders were free and open borders. Okay, here I come to something very funny. There is something called the sixth schedule of the Constitution, Indian Constitution. Now, the sixth schedule of the Indian Constitution, it caters for establishment of autonomous district councils in Meghalaya, Tripura, Mizoram, and Assam. Right. These autonomous district councils are made up of tribal districts. Why I know it? I commanded my brigade in North Kachar Hills, which had this,
autonomous district council. And of course, Manipur also, uh, some part I stayed there. And Karbi Anglong has got a district council and, many, Bodo land, all these. These district councils aim to safeguard and maintain the tribal culture. ये ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए ही है, बना हुआ है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इनके पास वो पावर है कि वहां के लॉस बनाने के लिए, कानून कायदे बनाने के लिए सब पावर है इनके पास। एक छोटा गवर्नमेंट ही होता है, गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये फंक्शन करते हैं। लैंड, वाटर, प्रॉपर्टी, ये सब इनके अंदर आता है और इनके बाकायदा इलेक्शंस होते हैं और इनका एक पार्लियामेंट टाइप होता है और सब कुछ उस तरीके से चलता है। और ये ओवरव्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। कुछ सब्जेक्ट्स इनको सेंट्रल ग्रांट्स मिलते हैं कुछ इश्यूज के ऊपर, तो इनका सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू सेंटर भी है और स्टेट भी है और इनका कंट्रोल भी ड्यूअल कंट्रोल है। इसी में प्रॉब्लम है आता तो। और ये राइट, ओके। और ये 6th शेड्यूल है। एक और 5th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या है? इट डील्स विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज इन 10 इंडियन स्टेट्स। वो कौन से है? हिमाचल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, देन राजस्थान एंड महाराष्ट्र। बाकी इंडिया के लिए 5th शेड्यूल, राइट। ये जो 4 स्टेट, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, इसके लिए 6th शेड्यूल। और एक अमेंडमेंट टू 6th शेड्यूल है जो जो गोरखालैंड के और ये दार्जिलिंग हिल काउंसिल और वहां के लिए चल रहा है। मजे की बात है ये है कि मणिपुर इज नॉट कवर्ड बाय द 5th शेड्यूल और द 6th शेड्यूल। ये क्यों? ये नहीं पता हमें। अच्छा, अभी बाद में 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने मणिपुर में अंडर द मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 3rd अमेंडमेंट एक्ट 2008, राइट। एक बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गए तो वहां का लैंड, प्रॉपर्टी वगैरह आप टच नहीं कर सकते हो, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर है, राइट। ये बनाए तो है आपने, पर ये डेवोल्यूशन कभी नहीं हुआ। डिमांड है पिछले 35 साल से कि इन मणिपुर हिल एरियाज को भी 6th शेड्यूल में दाखिल कीजिए, पर ये कभी होता नहीं है क्योंकि मणिपुर एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट अभी नहीं, पहले से है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स हैं, अनेक ट्राइब्स हैं, हर एक जगह एक ट्राइब है। आपको हर टीले के ऊपर एक ट्राइब मिलेगा। पर ये ट्राइबों का खासियत क्या है? ये जितने लोग हैं ट्राइब के अंदर, ये आपको मानना पड़ेगा, ट्राइब इज सुप्रीम। इंडिविजुअल का बोलबाला नहीं होता, विलेज का बोलबाला नहीं होता, उस ट्राइब इज सुप्रीम। इसमें ट्राइबल आइडेंटिटी बहुत मायना रखता है और उसके साथ साथ ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ साथ उनके एस्पिरेशंस हैं। और खास करके ये जो ट्राइब्स है, इनका एक अजीब चीज ये है कि ट्राइब सोचते हैं कि वो सबसे ऊपर है। आप उनको नेशनैलिटी इंडियन वगैरह बाद में आता है, ट्राइब पहले है। इंडिया बाद में, ट्राइब पहले, ठीक है। इनका इसका मतलब उनका अपना इलाका, कबीली इलाका और उनका एस्पिरेशन के ऊपर बहुत जोर है। इसीलिए ये हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इनका हिस्ट्री है हंटिंग और फाइटिंग, शिकार करना और लड़ना। ये पहले शिकार लड़ाई किस में होता था? एक और दूसरे ट्राइब के बीच में, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल्स के बीच में, प्लेन्स ड्वेलर्स के बीच में। क्यों? हक, मेरा हक है इधर मच्छी पकड़ना, या मेरा हक है इधर शिकार करना, आप नहीं आ सकते हो।
दे वर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर ओन लैंड्स। अच्छा, ये जितना भी माइग्रेशन हुआ है, ये सदियों से हो रहा है। वो आप अंडू नहीं कर सकते हो कि भाई ये मेरा इलाका है, वो उनका इलाका है। बहुत जगह, चाहे आप मणिपुर में, चाहे नॉर्थ कचार हिल्स में, आप या कहीं भी आप ले लीजिए, आपको मिलेगा एक रोड के ऊपर पहले एक नागा विलेज आएगा, उसके बाद एक कुकी विलेज आएगा, उसके बाद एक दिमासा विलेज आएगा, तीसरा एक मार विलेज आएगा, और एक पैटी विलेज आएगा, और वैफे विलेज आएगा। तो ये इंटरमिंगल हो गए, पर ये सब अपना ट्राइबल नॉर्म्स पे जीते हैं। हर एक ट्राइब का अपना अपना रवैया है, और ये विलेजेस मैंने बोला इंटरमिंगल्ड है, और इंटर ट्राइबल क्लैशेस एंड एथनिक क्लैशेस एरप्ट फ्रॉम टाइप टू टाइप। ये लड़ते हैं, और जब एथनिक क्लैश होते हैं, वो बहुत वेरी वायलेंट। ये कोई नया चीज नहीं है, ये पहले से ही बहुत वायलेंट है। और आपको ये, क्योंकि ये ट्राइबल लोग, उनका सोचना समझना बिल्कुल अलग होता है, तो आप इनके साथ अलग व्यवहार करना पड़ता है। ये पूरा इलाके में कहीं भी आप चले जाओ, आपका व्यवहार ही अलग होता है, इनका चाल चलन अलग होता है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट का टाइमिंग सब कुछ अलग अलग होता है। उन तो इनका सोच विचार अलग होता है। जब तक हम इनका सोच विचार को नहीं समझेंगे, इनका क्या प्रॉब्लम है वो भी हम नहीं समझेंगे। जब ये ट्राइब्स के अंदर कोई रिलीजन नहीं था, ये क्रिश्चियन मिशनरीज वहां गए और इनको क्रिश्चियनिटी का पट्टी पढ़ा दिया। अब वो क्रिश्चियन बन गए काफी। राइट, आपको एक उदाहरण देता हूँ। नागास, नागास में आपको मिलेंगे क्रिश्चियन और नागास, हिंदू नागास, पर इनमें कोई भेदभाव नहीं है, क्रिश्चियन नागा हो या हिंदू नागा हो। नागा होना इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन होना कम इंपॉर्टेंट है। और इनके बीच में शादी भी होता है, और साथ साथ भी रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अमूमन जब हम सोचते हैं कि ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू या हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम भी है इधर। मणिपुर में काफी मुस्लिम है, पंगाल बोलते हैं उनको, मणिपुरी मुस्लिम्स को पंगाल बोलते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। मणिपुरी इंपॉर्टेंट है होना, पंगाल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, और या मैती होना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर बाहर वाले जो है इसको उकसाते हैं, ये मेनलैंड से, या मेनलैंड नहीं, आप बाकी यहाँ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और जगह, हम ये सोच वहां ले जाते हैं, पर वहां ये प्रॉब्लम है ही नहीं। होगा कुछ, बट मोटा मोटा इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम। आजकल ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि रिलीजियस शेड दिया जा रहा है, वो खतरनाक है। राइट, नेक्स्ट, ये जितने नॉर्थ ईस्ट के हैं वो काफी एजुकेटेड हैं। वहाँ आप देखोगे लिटरेसी इज अप टू 80-90%, बहुत जगह में बहुत टैलेंटेड है ये। पर ये पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, बहुत प्रोग्रेस नहीं है जो हम सोचते हैं। और वहां का जो लाइफ है, इट गोस एट इट्स ओन पेस, हमारा पेस में नहीं चलता। वहां का सूरज उगता है 3, 3:30, 4 बजे, और ढल जाता है 4:30, 5 बजे। 5 बजे तक आप तारे देख सकते हो। आप बॉम्बे में चले जाओ, 7 बजे तक आपका सूरज नजर आता है। तो फर्क है, टाइम जोन का फर्क है, सोच का फर्क है। और वो इलाका, वहां का वातावरण, वहां का सब कुछ अगर आप देखोगे, तो वहां का लाइफ स्टाइल ही अलग है। लोग ना उतना एग्रेसिव नहीं है प्रोग्रेस के लिए, उनको इनका रिक्वायरमेंट्स और नीड्स भी कम है, लो लेवल ऑफ नीड्स। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब वहां ना फ्लड हो जाते हैं, जब फ्लड्स हो जाते हैं, हम फ्लड रिलीफ के लिए जाते थे। राइट, तो एक बार हम फ्लड रिलीफ कचार डिस्ट्रिक्ट में बराक वैली में हम गए थे।
तो वहां मैं ब्रिगेड कमांडर था, तो मैं जब जा रहा था, हमारा एक जूनियर के साथ एक आदमी लड़ाई कर रहा। तो मैंने जेसीओ से पूछा, भाई क्यों ये लड़ाई कर रहा है आपके साथ? तो इसने बोला, साहब मेरे को नहीं पता, ये बंदा जो है वहां, उसने दूर देखा है, एक अलग झोपड़ी था जो पानी में डूबा हुआ था बिल्कुल, और ये जो बराक नदी में पानी बह रहा था, रोड के अलावा दोनों तरफ पानी ही पानी। ये अकेला था। मैं, लोगों ने बोला कि भाई वहां अकेला बंदा है, इसको मैं पकड़ के ले आया हूँ। मैं गया, अपना रिस्क लेके, और पानी इतना तेज बह रहा था, मैं जाके इसको पकड़ के ले आया। और जब मैं गया, ये आ ही नहीं रहा था, ये लड़ना शुरू हो गया वहां से यहाँ तक, ये मेरे के साथ लड़ रहा है। तो मैंने पूछा, फिर मैंने शांति किया, ये मेरे जेसीओ को और बाकियों को भी शांति किया। मैंने ये इससे पूछा, भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है? ये तुम वहां पानी में फंसे हुए थे, आपको ये हमारा जवान लेके आया इधर। कहता है कि भाई देखो, मैं तो वहां बैठा था, पानी आ रहा था, पानी आने से मेरे पास चावल था, और पानी नजदीक आने से मच्छी नजदीक आएगा, तो मेरे को मच्छी मिल गया, चावल है, वो 2-3 दिन रहना था वहां, फर्स्ट क्लास मेरे को खाना मिलता। तो उनका सोच अलग है। तो मैं तो हैरान हो गया कि भाई हम सोच ही नहीं सकते ऐसे, पर है उनका सोच ऐसे। उसके साथ क्या लड़ सकते हो आप? और उसका रिक्वायरमेंट भी कम है, बाढ़ हो या ना हो, उसको दो मच्छी और चावल से खुश है वो। ओके। एक और बात है कि जो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, एक बार वो बाहर निकल गए तो वापस नहीं जाते। आप साउथ में देखिए, मैं यहाँ चेन्नई में आसपास देखता रहता हूँ, सो मेनी पीपल फ्रॉम नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, बहुत छोटे छोटे काम करते रहते हैं। मैं इनसे बात करता रहता हूँ, क्या आप वापस जाओगे? कह रहे, सर हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वहां कोई नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। यहाँ तो कम से कम हमें नौकरी मिलेगा, कोई कार पार्किंग कर रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। कहता, हम यहाँ से पैसा भेजते रहते हैं, नहीं तो हमारा गुजारा नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई नहीं जाता, तो प्लाउ बैक नहीं होता। जब तक लोग, जिसके इनके पास नौकरी है, जिन्होंने पढ़ाई कर लिया, जिन्होंने नौकरी पा लिया बहुत बड़ा बड़ा, वापस जाके अपने स्टेट में नहीं रहेंगे, वहां का प्लाउ बैक नहीं होता। जैसे हम फौज गए, जनरल बन गए, और वापस आए चेन्नई में, हम प्लाउ बैक कर रहे हैं, आईआईटी ज्वाइन कर लिया, आई एम प्लाइंग बैक इनटू माय सोसाइटी, बट देयर इज नो प्लाउ बैक देयर। तो जो भी है, इट इज डिग्रेडिंग, दैट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम। ओके, इट इज ब्रिमिंग विद टैलेंट। हम कितने बेवकूफ हैं, ये देश कितना बेवकूफ देश है। वो स्टेट मणिपुर, जो आपको सबसे ज्यादा मेडल दिलाता है, हॉकी में, वेट लिफ्टिंग में, आर्चरी में, कोई भी ले लो, बॉक्सिंग में मैरी कॉम ले लो, सनमाचा ले लो, नाम तो कुंजरानी देवी ले लो, ये सब हमारे, दे आर, हमारे लिए दे आर द बेस्ट। और ऐसे एक स्टेट को हम छोटे छोटे आंकड़े से देखते हैं। जब कोई एक अपना मणिपुर का या इंडियन जाके सियोल में या जापान में या कहीं अपना मेडल विन करता है, वो ये नहीं बोलता कि मैं मैती हूं या कुकी हूं, ये नहीं बोलते हम वो क्रिश्चियन है या हिंदू है, हम ये बोलते हैं कि वो इंडियन है। और ऐसे स्टेट को हम खराब कर रहे हैं, कितना बेशरम है हम। ओके, अभी मैं मणिपुर के बारे में बात करूंगा आगे। मणिपुर का कुछ खासियत है, एंड ये अगर हम समझेंगे तो बहुत चीज अपने आप, इट विल कम इनटू प्लेस। फर्स्ट इज द म्यांमार फैक्टर। लेफ्ट में जो म्यांमार का जो मैप है, दोज रेड स्पॉट्स आर द स्पॉट्स वेयर देयर वाज डिस्टर्बेंस वंस अपॉन अ टाइम।
before the coup. राइट साइड में जो मैप है, वो जो लाल 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 है म्यांमार के अंदर, दैट इज द मैप टुडे, फुल ऑफ डिस्टरबेंस. अगर डिस्टरबेंस वहां है, बॉर्डर ओपन है, बॉर्डर लाइव है, तो डिस्टरबेंस यहां भी आएगा. अगर आपके घर, बगल के घर में दंगा हो रहा है और आपके पास दीवार नहीं है, तो वहां से यहाँ आएगा, इसमें दो राय नहीं है. और यू मस्ट अंडरस्टैंड, म्यांमार एंड बर्मा, सॉरी, म्यांमार एंड नॉर्थ ईस्ट आर सिमिलर. वहां भी इतने ट्राइब हैं जितने यहाँ है, और वहां भी इनका कंट्रोल नहीं है. वहां भी वही है, वो एक वैली है और हिल्स है वहां. जिस तरीके से मणिपुर है, वहां भी वैसे ही है. तो वहां से यहाँ बल पक्का आएगा डिस्टरबेंस, और उसके बारे में आगे भी जिक्र करूंगा. दूसरा फैक्टर, अरुणाचल, ये आर्म्ड ग्रुप्स, ये थोड़ा नजदीक देखिए. आर्म्ड ग्रुप्स जो मणिपुर में पहले से थे, ये मणिपुर का कोई प्रॉब्लम आज नहीं शुरू हुआ. मणिपुर प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड लॉन्ग बैक. ओके, there have been armed groups, there have been Naga groups, there have been Kuki groups, there have been Maiti groups. Maiti groups are called valley-based insurgency groups. Some groups even declared some parts of Manipur as independent. When I was there in 2008, we had to fight them and clear those areas. PLA. It used to be called People's Liberation Army, all Manipuri groups. Now, the armed groups on Manipur today are supporting Tatmadaw or PDF in Myanmar. जब म्यांमार का प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है ना, तो पिछले 1-2 साल से ये अपने ग्रुप जाके वहां लड़ रहे हैं, उनके एक के खिलाफ एक. वहां जो पीडीएफ और तात्मदाव के बीच में सिविल वॉर तो चल ही रहा है. ये भी शामिल है एक, क्योंकि पैसा मिल रहा है इनको वहां से. तो अगर वो है तो रिवर्स भी होगा. तो वहां के ग्रुप यहाँ आके लड़ेंगे इनके लिए. तो हम जब सुनते हैं कि वो म्यांमार से आ गए, लुंगी वाले आ गए, ये वाले आ गए, वगैरह वगैरह वगैरह, यही बात है. आपके जो ग्रुप वहां जाके लड़ रहे हैं, तो उनके ग्रुप यहाँ आके लड़ रहे हैं. फॉर दोस्त है ना, ऑपोजिट दोस्ती हो गया इनका. राइट. तो एंड ये लाइव ओपन, बट लाइव बॉर्डर. ओपन बॉर्डर का मतलब क्या है? फेंसिंग नहीं है. क्यों फेंसिंग नहीं है? फैमिलीज इधर भी हैं, उधर भी हैं. 15 किलोमीटर आप तक आप जा सकते हो हेड लोड लेके. बहुत जगह आपके पास वहां रास्ता ही नहीं है, कम रास्ते हैं, पगडंडियां हैं. अगर आप फेंस भी डाल दोगे, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना जंगल है, आप देख भी नहीं सकते. 10 गज बगल में आपको एक पूरा पलटन निकल जाएगा, आपको यू विल नॉट नो व्हाट इज मूव्ड. काटने की भी जरूरत है, खोद के नीचे चले जाएंगे या पेड़ के ऊपर से चले जाएंगे. राइट. बट इट्स अ लाइव बॉर्डर बिकॉज ग्रुप्स मूव. हमारे ग्रुप्स वहां कैंप्स लगाते हैं. हम जब म्यांमारी आर्मी से पूछते हैं कि भाई तुम कैंप क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, कहते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं है. जब हम करते हैं चुप रह जाते हैं. ओ इट इज म्यूचुअल दिस थिंग. बट दे आर सेंसिटिव. ये दूसरा कंट्री है, आप जाके वहां कुछ नहीं कर सकते हो. एक हद तक कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते हो. दिस इज लेगेसी. जैसे मैंने बोला, बर्मा बॉर्डर से पहले ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे, एक ही देश में थे ये. दूसरा, दिस पार्ट इज द गोल्डन ट्रायंगल. 30% ऑफ इंटरनेशनल ड्रग्स कम फ्रॉम हियर. कौन से है? ये देखिए ट्रायंगल. व्हाट इज इन्वॉल्व? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, southern part of China, Yunnan. These are all low hills, just like the Naga and Kuki hills or the Manipur hills. पॉपी यहाँ ग्रो होता है. 30% of international drug trade comes from here.
So in this area, the drugs, it is naturally lower hills are suitable for poppy growth, and hence hill dwellers have taken it up. अगर आप इनको और कोई, if you don't give them an alternative way of life, they'll do poppy growth because it's money. This is the problem in Afghanistan also. Why did America fail in Afghanistan? When this is something which everyone has to understand. When जब अमेरिकन अफगानिस्तान में गए थे, पहले 2-3 साल इन्होंने पूरा पॉपी फील्ड्स को नष्ट कर दिया. जब इन्होंने पूरा पॉपी फील्ड्स को नष्ट कर दिया, जितने अफगान थे वहां, वो गुर्बत में आ गए, पॉवर्टी में. ये अमेरिकन उनको खाने नहीं दे सकते थे. देयर इज नो अल्टरनेटिव क्रॉप. अगर अल्टरनेटिव क्रॉप नहीं है, वो उसको और कोई जीवन दान के लिए कुछ समझ, ये ही डजंट हैव एन अल्टरनेटिव, वो भूखा मरेगा और गलत काम करेगा. सो दे हैड टू अलाउ अफगान्स टू ग्रो पॉपी. एंड व्हेन अफगान्स स्टार्टेड ग्रोइंग पॉपी, ये तालिबान वाले ने जाके उनको ऑर्गेनाइज कर दिया और पॉपी का कल्टीवेशन डबल हो गया. जब वहां डबल हो गया, तो ये गोल्डन ट्रायंगल वालों ने सोचा है भाई यहाँ कैसे कम हो सकता है, यहाँ भी डबल करो भाई. कंपटीशन है ना, पैसे की कंपटीशन. तो ये गोल्डन ट्रायंगल में पॉपी कल्टीवेशन इंक्रीज. व्हेन गोल्डन ट्रायंगल में पॉपी कल्टीवेशन हो गया एक्सेस, ये ट्रायंगल बढ़ गया और ये अपना मणिपुर में आ गया. ये मैं पेपर में देखता रहता हूँ कि कुकी वाले पॉपी कल्टीवेशन करते हैं. कुकी वाले तो करेंगे, वो हिल्स में है, उनको कोई नौकरी नहीं है तो पॉपी कल्टीवेशन करेगा. ये कुकी वाले ही करते हैं, नागा वाले भी करते होंगे, उसके बारे में जिक्र ही नहीं है. मेरे को पूरा यकीन है कि नागास भी कर रहे हैं. और जो भी, अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं ये ही करेंगे, नीतीश नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे होंगे जहां इनके पास जगह है करने के लिए. तो ये अफवाह जो फैल रहा है ना, दिस इज रॉन्ग. ओके, अगर if there is no alternative, then the China factor will kick in. आपका मूवमेंट इधर उधर है, ड्रग्स है, आर्म्स है, आर्म्स ट्रैफिक तब से हो रहा है. चाइना का हथियार हम जाके with the right price you could have bought it in a market. There's nothing new. Arms and drug smuggling in this area were endemic. नया क्या है इधर? आपने आज तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाए. हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? क्योंकि ये सब ट्राइबल्स हैं. वो नागा का प्रॉब्लम है. अभी आता हूं इसके ऊपर नेक्स्ट. ये देखिए, ये भी नजदीक दिखाऊंगा आपको. दिस इज हाफ द प्रॉब्लम. यू सी नागालैंड बीच में है, ओके, बट नागालैंड का क्या डिमांड है? नागालिम. नागालिम, व्हाट इज नागालिम? जहां जहां नागा रहते हैं वहां वहां ये ग्रेटर नागालैंड या नागालैंड चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट. ये बेसिक डिमांड है. और जहां कहाँ रहते हैं नागा? नॉर्दर्न हाफ ऑफ मणिपुर, एनसी हिल्स इसमें दिखाया गया है. देखिए नजदीक में और दिखाऊंगा. एनसी हिल्स, नॉर्थ कचार हिल्स, कार्बी आंगलोंग, शिवसागर तक, डिब्रूगढ़, पूरा आपका तिरप्पा और चांगलांग जो अरुणाचल का इलाका है, ये सब नागा एरिया है. ये दे वांट. तो एज अ रिजल्ट मणिपुर इज ऑलवेज अनस्टेबल. Northern part of Manipur is all Nagas, so they are all unstable. So the Nagas in Manipur want to separate. They want to be part of Nagaland. So that's another kid pit. And these Nagas and Kukis, they want to live in the same hills. So there is work. इनके बीच में लड़ाई है. और पहले भी इनका एथनिक क्लैशेस हो गए. नागास और कुकीज का पहले से एथनिक क्लैशेस हो गए. अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इनका एथनिक क्लैशेस होता रहता है. पर आजकल जो है नया पॉलिटिकल स्टोरी चल रहा है. आजकल जो हो रहा है वो बहुत डेंजरस है क्योंकि काफी पॉलिटिकल है. अफसोस की बात यह है कि यहां से जो, जिनको बिल्कुल पता नहीं है, जैसे वो आईएएस ऑफिसर ने ट्विटर में दिया है असम राइफल्स के बारे में, अनाप शनाप,
वो सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, ओपिनियन दे सकते हो, करो बेवकूफ की तरह और जलाओ मणिपुर को। ओके, मैं अभी मणिपुर प्रॉपर आऊंगा। मणिपुर का दिस द ज्योग्राफिक लेआउट ऑफ मणिपुर। ओके, अगर आप मणिपुर देखोगे, I told you the sub Himalayas come north to south. The brown are the hill areas. The lighter green on west and east of the thing, lighter green are the lower hills. In the center, Manipur mein is the plains. That's the Manipur Valley, right? और बीच में एक ब्लू में है, आप देखिए, एक लेक है, लोकतक लेक। इट्स अ गजब का लेक है ये। इट्स गॉट फ्लोटिंग आइलैंड्स। थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं। तो दिस इज द थिंग। अगर मोटा मोटा देखेंगे, जो नॉर्दर्न एरियाज में है, जो नॉर्दर्न हिल एरियाज में है, वो नागाज रहते हैं। सदर्न हिल एरियाज में है, वो कुकीज रहते हैं। बीच में जो ग्रीन एरिया है, गहरा वैली में, वो मैतीज रहते हैं। ये मोटा मोटा ये है। ओके, अभी ये है पॉपुलेशन मैप। जो पीला है, वेरी लेस पॉपुलेशन, लेस देन 0.2 मिलियन। ग्रीन जो है, वो वैली, वो 0.2 to 4 मिलियन पॉपुलेशन। और ये जो सेंटर, इम्फाल के चारों तरफ मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वैली में मैक्सिमम है। तो इससे क्या मिलता है आपको? मैक्सिमम एरियाज में कम लोग रहते हैं, मिनिमम एरियाज में ज्यादा लोग रहते हैं। और ये जो मिनिमम एरिया में रहने वाले मेती हैं, और इनका आबादी बढ़ रहा है। मैक्सिमम एरियाज में जो रहने वाले हैं, ये हिल्स कुकीज और नागाज हैं। इनका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। और क्योंकि ये हिल एरिया में आप नहीं जा सकते हो, जब तक आप ट्राइब नहीं हो, आप वहां लैंड नहीं ले सकते हैं। पर ये बीच में ले सकते हैं। ये लॉ है, ये हमारा बेवकूफी का लॉ है। द इंडियन स्टेट हैज नेवर अटेंडेड टू दिस डिस्क्रिपेंसी। और यही प्रॉब्लम है। दूसरी बात मणिपुर का खास करके, कम्युनिकेशन नहीं है मणिपुर में। मणिपुर में कैसे जा सकते हो? मणिपुर यू हैव टू रीच ओनली थ्रू नागालैंड। वन रोड कम्स फ्रॉम नागालैंड नॉर्थ टू साउथ, right? And one load comes from east, sorry, west to east via Assam. दोबारा ये आप देखिए इधर, असम जहां एम लिखा है ना, उसके नीचे एक जगह है जिरीबाम। वहां से आता है रोड टू मणिपुर। एक रोड है, एक रोड ऊपर से आता है नागालैंड के थ्रू। और कोई दो रास्ते के अलावा मणिपुर के अंदर कोई रास्ता ही नहीं है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है? जब रोड ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है, मणिपुर में कुछ भी आना जाना, ये दोनों कंट्रोल अगर आप कर सकते हो, तो मणिपुर को सुखा सकते हो। बहुत लोग अगर नागालैंड, नागा वाले वो सोचते हैं कि इनको मणिपुर में कुछ नहीं देना, नागा बैठ जाते हैं, रोड बंद कर देते हैं, मणिपुर में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, दे डोंट गो। आजकल ये जो जिरबाम वाला रोड है, वो डेवलप हो रहा है। तो लोगों को वहां पेट्रोल नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, आपको गैस नहीं मिलेगा, आपको दाल नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। वाई विल पीपल नॉट बी अपसेट? इट इज नॉट ओनली कुकीज who are upset, it is not metis who are upset, nagas who are upset, everyone will be upset there। जब सब अपसेट हैं, तो एक दूसरे के बीच में लड़ना तो मुनासिब ही है। हमने ये स्टेट को, ओके। दूसरी बात, एक मजे की बात यह है मणिपुर में, ये इस मैप में देखिए, अगर आप त्रिपुरा में देखोगे, तो द कॉम्पोजिशन ऑफ त्रिपुरा इज बंगालीज अराउंड अगरतला। और कौन है बंगालीज? ये सारे बंगालीज बांग्लादेश से आए, पुराने, प्री वॉर, सॉरी प्री पार्टीशन, मोटा मोटा, बिकॉज अप टू अगरतला द बंगाली स्पीकिंग लैंड वाज एक्सटेंडिंग, एंड अगरतला एंड सराउंडिंग एरिया, सम एरिया। वहां एक राजा भी था, राइट, राइट। बट त्रिपुरा के चारों तरफ भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं। वहां कौन थे? त्रिपुरीस।
त्रिपुरा सुंदरी का वहाँ डेटी भी है। तो त्रिपुरीज जो, so they are all Tripuris or Bengalis. That's all. आप मेघालय में जाइए, 3 ट्राइब है वहाँ, गारोस, कासी, जैंतियास। ये तीनों एवॉल्व ट्राइब्स हैं, क्योंकि ये ऊपर असमी थे, नीचे बंगाली थे। इनका कल्चर फ्लो नॉर्थ टू साउथ हो रहा था, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, तो लॉट ऑफ फ्लो वाज देयर। ये 3 ट्राइब, दे नो हाउ टू लिव इन बैलेंस, सीख लिया इन्होंने। ओके, अरुणाचल में जाइए, आपको बहुत ट्राइब्स मिलेंगे ईस्ट टू वेस्ट, राइट। पर अरुणाचल में ये ट्राइब्स जो हैं वो डिफाइंड एरियाज में रहते हैं, डिफाइंड वैलीज में रहते हैं। ये इंटरमिक्स नहीं हो है अरुणाचल में। तो उधर, क्योंकि एक वैली में एक ट्राइब है तो कुछ ठीक है, आप दूसरे वैली में जाओगे तो दूसरा ट्राइब है, वो खुश है वहां। इनका दोनों का मेल मिलाप ज्यादा नहीं होता, क्योंकि पहाड़ है बीच में, बड़ा बड़ा पहाड़ along the river valleys. ओके, अरुणाचल में जब अरुणाचल घूम के अराउंड असम आ जाता है, नागालैंड को मिलता है, वहां प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां नागास भी हैं, मिशमीस भी हैं, सब कुछ है। नागालैंड में देखिए तो ओनली नागास आर देयर, एक ही ट्राइब है। नागास का सब ट्राइब्स बहुत हैं, वो अलग बात है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। बट देर ऑल नागास, बाउंड बाय द नागा ट्रेडिशन। ओके, मेघालय बता दिया आपको। मिजोरम में नीचे देखिए तो देर आर ओनली मिजोस, मिजोस एंड सब सब ट्राइब्स ऑफ मिजोस। बट मणिपुर में आप देखिए 3 किस्म के हैं। लैंग्वेज देखिए, वो अपने आप पता पता चल जाएगा। मणिपुर में नॉर्थ में नागा है पूरा, साउथ में पूरा कुकीज है। कुकीज, हमा, मार्स, पैते, लुक्स, थाडो, कुकी, ये सब एक ही कुकी जात के हैं। कुकीज, चिन, ये कुकी और चिन, मिजोस, ये सब एक एथनिक ग्रुप के हैं। उनका मांग है कि हमें एक अलग स्टेट दे दो। वो कैसे? और 35 का है कि भाई हम तो मणिपुरी हैं, ओरिजिनल इंडिपेंडेंस है। नागालैंड वाले बोलते हैं कि हम ऊपर जा सकते हैं। इसका मतलब मणिपुर वांट्स टू डिवाइड इटसेल्फ इन 3। पीपल ऑफ मणिपुर डोंट वांट टू स्टे एज मणिपुर, ये लड़ते रहते हैं, और हमने इनको कभी आइडेंटिटी नहीं दिया। अगर ये, इफ यू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, अगर कल के दिन मणिपुर टूट गया तो वो वर्स्ट केस होगा हमारा। मणिपुरी सिर्फ सेंटर में बात, नो, द डायलेक्ट। नॉर्थ में आप अगर आप देखो कबुई, तंकुल वगैरह, ये नागा के हैं। नीचे ताड़ाव, हमार, यहाँ बंगाली भी है, तमिलियंस भी हैं, मारवाड़ी भी हैं। ये नेक्स्ट बताऊंगा मैं इनका डेमोग्राफी के बारे में। मणिपुर में रिलीजन देखिए, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम भी है, और अदर्स भी हैं। सर, सब टाइप के हैं, और खुश रहते हैं। इनका कोई कम्युनल प्रॉब्लम होता ही नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मणिपुर और ये नॉर्थ कचार हिल्स जो इधर मैंने एक मैप में दिखाया है ना, ये असम, ये एक और में, हाँ इसमें देखिए नॉर्थ कचार हिल्स है ना, मणिपुर और नॉर्थ कचार हिल्स का प्रॉब्लम वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि नॉर्थ कचार हिल्स में जो मैंने देखा था, जो मेरा वहां 3 साल रह चुका हूं, मैं वाज अ कमांडर देयर। ये नागास भी थे, कुकीज भी थे, मार्स भी थे, दिमासास भी थे, कार्बिस भी थे, नॉर्मल बंगाली भी थे, असमी भी थे। सबका अलग अलग मांग, सब चाहते हैं अपना फ्लैग लाके, भाई हमें ये चाहिए। उसके अलावा छोटे छोटे टाइप और भी थे, रोंग में, ब्रू, मैं आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट। These two places, North Kachar Hills or Manipur, are the two crux
problem areas of नॉर्थ ईस्ट. अगर मणिपुर और नॉर्थ कचार हिल्स, अभी दिमासा दिमासा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है ये, दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट और मणिपुर को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो नॉर्थ ईस्ट विल गेट रिजॉल्व. द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट is contingent upon solving the problems of Manipur and the solving of Dima Hasao district. The Dima Hasao district has been solved to a large extent because वहाँ का जो tribe maximum tribe है दिमासा ट्राइब, और उसको धीमा हसाओ करके वो उसको दबा दिया. बट इधर ना मैक्सिमम ट्राइब नहीं है, ये 3 ट्राइब्स नहीं है. विल कम टू दैट. मणिपुर का पॉपुलेशन पढ़ेंगे अभी. मणिपुर का पॉपुलेशन एज पर 2011 में है, ये 57% जो है वो वैली में रहते हैं, मेनली इनहेबिटेड बाय मेती स्पीकिंग पीपल यानी मणिपुरी. बीच में जो मैंने दिखाया 42.8% लिव इन हिल डिस्ट्रिक्ट. ये थोड़ा बहुत बदली हो सकता है, ये कोई ये नहीं है कि आज के दिन काफी बदली भी हो गया होगा, बट मोटा मोटा. और ये जो 42% जो हिल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ये मोटे मोटे तौर पर नागास और कुकीज है. और इसमें नागास जितने हैं वो 28% है कुछ है, और कुकीज 18% है, या उस तरीके से है. 28% और 18% या ऐसा 16%. तो इट नॉट इवन 1/3. तो अभी जो लड़ाई जो चल रहा है मणिपुर के अंदर, वो कुकीज और मेथीज के बीच में, नागालैंड नागास के साथ नहीं है. हाफ ऑफ मणिपुर इज काम. ओके. नागा और कुकी जो है वो हिल्स में रहते हैं, पहाड़ में. पर कुछ नागा और कुकी सेटलमेंट जैसे मैंने बताया वो नीचे भी हैं, कम है, बट वैलीज में भी है. और इसके अलावा काफी नेपाली, बंगाली, तमिल्स और मारवाड़ी भी मणिपुर में रहते हैं. ये तमिल्स कहाँ आ गए यहाँ? ये सब बर्मा में जो व्यापार करते थे वो आके बॉर्डर में एक जगह है मोरी, मोरे, मोरे में आके ये व्यापार करते हैं, मारवाड़ी और तमिल. वहां जाके आप तमिल में बात करो, फर्स्ट क्लास समझ में आता है सबको. तो ये एक मिक्स स्टेट है ये. राइट. ओके. वहां जहां तक ट्राइब्स है, नागा और कुकी और यबलिक जो जो भी बोलते हैं, मेजर ट्राइब्स हैं. और ये कुकीज जो है ना, अलग अलग छोटे सब ट्राइब्स में बटे हुए हैं, जैसे तडू, मार्स, जो, वैफई, गंगते, सिमते, टिड्डम, पैते. ये अलग अलग ट्राइब सब ट्राइब्स हैं इनके. उसी तरीके से नागास का भी है. मणिपुर में का वो सब डिवाइडेड है ये. वो अनाली, लांगमाई, माऊ, मरम, मारिंग, रोंगमे, कंकुल, जेमे. जेमे नागा हमारे, मेरे को याद है क्योंकि वो जेमे नागा इसके साथ हम एनसी हिल्स में रोज डील करते थे. मजे की बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अलग अलग ट्राइब के हैं? जिस तरीके से शॉल पहनते हैं ना, आप देखते हो लाल, नीला, ग्रीन, काला, ये इनका शॉल देखिए, जो द स्ट्राइप शॉल्स जो पहनते हैं, उनके कलर और इनमें जो बुनता है ना, बुना हुआ, उससे पता चलता है कि ट्राइब कौन सा है. अगर आप वहां रहते हो, आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा ये ट्राइब कौन सा है. और जो नहीं पता है उसको ये रंग बिरंगे शॉल ही दिखाई देता है. आप एक ट्राइब के पास जाते हो तो उनका ट्राइब का शॉल देते हैं ये आम शॉल नहीं है कि आप कहीं भी खरीद सकते हो. वो हाँ, घर में बुन के उस ट्राइब से, उस रंग से ही मिलेगा आपको, और उस ट्राइब के वही रंग पहनते हैं ये. राइट. बैतीस जो है, पंगाल भी है. पंगाल कौन है? इस्लामिक मुस्लिम. मुस्लिम्स कहाँ है यहाँ? ये भी तो ये भी तो ये है. आपको वापस ले चलूंगा पहले एक स्लाइड में, आपको तभी पता चलेगा.
या इधर देखिए, इफ यू सी इन दिस स्लाइड, द सदर्न रिवर बराक रिवर, right? Muslims came from Bangladesh or East Pakistan or then undivided Bengal. They came through the Silchar belt and went up the Barak Valley into Manipur. In the Kachar area, and that is in Barak Valley, there are three districts, plains districts: Karimganj, Hailakandi, and Kachar. Karimganj and Hailakandi are Muslim districts. और इनके ओवरफ्लो गया है मणिपुर में सदियों से, और वहां आपको मैती पंगाल मिलते हैं. ओके, राइट. तो मैती पंगाल मिलते हैं वहां. क्रिश्चियनिटी जो है ये, नागास भी क्रिश्चियन है मोटे, और कुकीज भी क्रिश्चियन है. तो अगर आप सब बोलते हैं कि एक सवाल भी है कि मैती हिंदू वर्सेस कुकी क्रिश्चियन इज अ रिलीजियस फैक्टर, फिर नागास के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि नागास भी क्रिश्चियन है वहां. तो क्रिश्चियन फैक्टर नहीं है ये. क्रिश्चियन फैक्टर हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन ही होता, तो नागा शुड ऑल्सो बीन इन दिस प्रॉब्लम. इट इज समथिंग डिफरेंट. ओके, जैसे मैंने बोला, जितने मैतीस हैं वो वैली में कॉन्सेंट्रेटेड है, मैक्सिमम डेंसिटी वहां है, और ये वैष्णवेट हिंदूज हैं. और हिल्स में कम डेंसिटी पॉपुलेशन में ये कुकीज रहते हैं. इट्स अ मेनली अ प्रॉब्लम ऑफ लैंड. ये लोकटक लेक है. इट इज ऑल फुल ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड. पीपल लिव ऑन those floating islands. One day you will find one floating island एक जगह, दूसरे दूसरी जगह, and the formation of the floating islands changes. ना बढ़िया जगह है कि आप पूछो मत. राइट, एस्पिरेशंस. हर ट्राइब वो अपना सेपरेट स्टेट मांगता है. हर ट्राइब दूसरे को डोमिनेट करना चाहता है. सबको लैंड चाहिए आजकल, खास करके मैथीस को, क्योंकि वहां आबादी बढ़ रहा है. वहां करने के लिए कुछ है ही नहीं, लैंड चाहिए. जब तक लैंड नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएंगे, लिवन्स फ्रॉम. प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट. कोई दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता. फंडामेंटल प्रोग्रेस नहीं है. ड्रग्स और आर्म्स का मैंने बता दिया आपको. पीपल वांट टू टेक द इजीएस्ट रूट टू प्रोग्रेस. पॉलिटिकली डिवाइडेड है ये. ट्राइबल लॉयल्टी ज्यादा है, इसीलिए मैती कुकी को नहीं देखता, कुकी नागा को नहीं देखता. हर ट्राइब और हर इसका अपना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लड़ने के लिए. ये सस्पेंशन ऑफ वगैरह कुछ मायना नहीं रखता, क्योंकि ये कुछ हथियार उन्होंने जमा कर दिया, कुछ हथियार इनके पास खुद दबा के रखे होंगे पक्का. ये अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं. टैक्स हर मिलिटेंट ग्रुप, हर ट्राइब अपना टैक्स कलेक्ट करता अपने इलाका से. गवर्नमेंट नहीं करता वहां. ये एक अजीब तरीका है ये. जब तक आप रूल ऑफ द लॉ नहीं आएंगे कैसे होगा? ये ट्रिगर हम सबको पता है. अभी ये हाई कोर्ट जजमेंट था. क्या बेसिक रीजन है? लैंड, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मैथीस, अपॉर्चुनिटी नहीं है. देखिए, लोकल लीडर्स जितने हैं वो लोकल एरिया को वो प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं. वो जाके सेंट्रल ग्रांट से पैसा ले लेते हैं, पैसा कहा जाते हैं. पॉलिटिक्स है प्रॉब्लम. गवर्नेंस बहुत खराब है वहां. अभी से नहीं, पिछले 20-30 साल से. लॉलेसनेस, रैम्पेंट लॉलेसनेस. देयर इज कंप्लीट डिस्ट्रेस आज के दिन. और कुकी और मेथी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द ट्राइब्स. डेंजर क्या है इस सिचुएशन में कि नागास ऑल्सो गेट इन्वॉल्व. अगर चाइना आके इधर शुरू कर दिया तो आप तक गए. अगर एक बार मणिपुर हाथ से निकल गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल जाएगा. अगर म्यांमार कल के दिन वो आपको हेल्प नहीं करेंगे तो आप फंस गए. अगर अनरेस्ट बाकी स्टेट्स में चला जाएगा, मिजोरम, असम और अरुणाचल में जा सकता है, फिर तो नॉर्थ ईस्ट गया, आप बैठते रहो. हमारा प्रधानमंत्री गए यूएसए में इंटरनेशनल अलायंस वगैरह करने के लिए. यहाँ आप नॉर्थ ईस्ट बिछड़ जाएगा अगर हम इसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो. राइट, ओके.
तो सॉरी, प्रॉब्लम आज के दिन कंप्लीटली पॉलिटिसाइज्ड है। ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन जहां तक मैं देख रहा हूँ, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड दे आर ओपनली टेकिंग साइड्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आर एट वर्क। वो अपना सीट जीतने के चक्कर में है सब। वहां शांति नहीं, सीट जीतने के चक्कर में है। ये जो करंट गवर्नमेंट है और जितने एथनिसिटीज हैं उनके बीच में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। रूमर्स है, जैसे मैंने बोला, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, कुकी वाले पॉपी उगाते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है। सारे अपना अपना नैरेटिव और अपना स्टोरी बता रहे हैं ताकि वो अपना फायदा के लिए हो। और ये प्रॉब्लम जो है ना, संगीन है। हमारा गृह मंत्री गए थे वहां, 4 दिन बैठे हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, तो तब भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सॉर्ट आउट हो रहा है। कुछ तो सोचना चाहिए सबको। आज गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग दी है, देखते हैं। ये प्रॉब्लम जल्दी से नहीं जाएगा। क्या प्रेसिडेंट रूल लगाना है? मेरे ख्याल में लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो, इट हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। इफ इट हैज द ट्रस्ट ऑफ ओनली वन पार्ट ऑफ द पीपल, दैट गवर्नमेंट इज यूजलेस। क्या हम बाहर से लेके आ सकते हैं कोई रेस्पेक्टेड नेशनल फिगर ताकि गवर्नमेंट चला सकते हैं? अगर आप वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे और वो जो गवर्नर भी एक तरफा हो जाए तो और भी प्रॉब्लम बिगड़ेगा। इनएक्शन इज नो ऑप्शन कि आप बेटर हो तो कुछ हो जाएगा, हल आएगा नहीं हल, और बिगड़ता जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जितने इनके टैलेंट है टैप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेमेडी क्या है? वहां आग बुझाओ। लॉन्ग टर्म क्या है? ये स्टेट जो है ना, इनवर्ड लुकिंग स्टेट है। मेरा ये तजुर्बा है कि ये इनवर्ड लुकिंग स्टेट है। द लॉन्ग टर्म solution to Manipur is to make Manipur an outward looking state. At this point of time and in all its history, it has been an inward looking state. As people have won, acclaim in games and all that, they've started looking outward. Unfortunately, this incident has taken you back to looking inward. Exploit their weak strengths and hide their weaknesses. वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। Yeah, I have finished. I have given you what I've had to say. I have no great solutions except the fact that we all have to sit together and not heat our heads up. And, okay, yeah, Methi Hindus versus Christian cookies. Is religion a factor? No, it is not a factor. We have made it into a factor. We have made it into a factor, and that's what's happening there. I see pictures of churches burning and this, that, Hindu temples destroyed. Both sides. This is being made politically. Okay, now let me see. I'll take some questions. Yeah, Major Madan put it down to drugs. That's it. Conflict is being made to look ethnic or religious. The eviction drives are affecting harvest. John, I suggest, all these are all bunk. I want to know if Madan has ever gone there. You read this article by Amit Bansal. Very good article. He's written. Who's Madan? I've never heard of him. I've never seen him in the Northeast. You go and stay with them, then you understand what their problems are. Come on. Saw your on Jaipur Dialogues, watching your videos since then. Yeah, thanks a lot. I'm not interested in my channel growing. I want places like Manipur to be normal. They're the best places. If you go there, you'll realize how good it is a place.
Yeah, why not create a Ministry of Information and run an official narrative? Yeah, we have to do something out of the box. There's no doubt. John Doe, I think you are poppy fixed. Get out of it. Get out of this fixation. I told you why poppy cultivation has gone up there. It is part of a larger international problem. It is part of the problem that you're not being able to offer an alternate source of employment to people. Just destroying poppy will not resolve the problem. Yeah, I agree with you completely, Tarun. We have invested heavily in J&K. We need to invest more in Northeast. There's no point in electoral politics there. You do electoral politics, you're done. Okay, I put my rank on the line there when people said fix the elections. I said no. Even if he's a tribal, he should have elections. He should be electable. I've seen cookie militants on YouTube openly showing weapons, army, their own headquarters. Yeah, they will. That's part of information warfare. They'll show, someone else will show. That's not great. So what if they show me weapons? How does it matter? I'll give you one story. It's a story which will tell you what that place is all about. 2008, I sent about 40 children to Delhi and Agra and all that from that area, tribal areas. Very intelligent children. I went them, they went and saw, met the president of India also. Okay, there was this girl, I'll call her Nancy, right? I don't remember. So Nancy was a very smart young Naga girl, ninth standard. There she went. She was asked, so the president, then Dr. Abdul Kalam, asked them, yeah, you have any questions? There, he spoke everything. He said, you have any questions? So Nancy was told, you will ask the president a question. So she asked the question. What was the question she asked? She said, sir, why do we see so many beggars in trains and in street corners in Delhi and all that? So the president said, oh, because of economy, you know how it is. Ye wo, whatever, whatever. He didn't understand what this girl was saying. When she came back, she asked me, he said, sir, why do this happen? I understood it. You know why? Because in the entire Northeast, you don't see beggars. He was asking the president of India, "Ki, why are people begging in Delhi? And why people don't beg in Nagaland and Manipur and all?" The president couldn't understand that. This is a true story. They are people, proud people. They have very little. They will never put their hands out. You will never see a old age home there. But yet you will not see an old man or an old person dying out of the tribe. The tribe takes care of them. The tribe gives them social net, which is not there today in all our developed areas. They have some fantastic traditions. और उस इलाके को हम जला रहे, right? I don't see any more questions. This is more of an informative video. I can understand, right? Thanks a lot. Good evening and Jai Hind. Tomorrow I'm going to have an update, and that update will also talk of the coup which is happening in Russia. Things will, right? And this is more of information. Please give it, please retweet it out to all your friends. Forward this to all your friends so that they understand what Northeast is all about, right? Unless people don't understand what this whole place is about, you will
It's a waste of time, right? Good evening. Thank you and Jai Hind.